I greet all of you in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी लोगों को अभिवादन करता हूँ। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, speaking about Jesus Christ, हम यीशु मसीह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। there is no end. उसका कोई अंत नहीं है। His name is Alpha and Omega. उसका नाम ही अल्फा और ओमेगा है। Jesus Christ, यीशु मसीह Alpha and Omega, वो तो अल्फा और ओमेगा हैं, beginning and end, वो तो आदि और अंत है, first and the वो last. पहले और अंतिम हैं। Revelation chapter 1 verse 11. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 11 कहता है, It says, saying, I am the Alpha and the Omega, I am the Alpha and Omega, the first and the last, the first and the last. and what you see write in the book and send to the 7 churches. We'll read it, chapter 2, verse 8. यहाँ पर ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ। तो आइए अभी पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 8 इस तरह से कहता है, एंड टू द एंजल ऑफ द चर्च ऑफ द स्मरना राइट, दिस थिंग सेज द फर्स्ट एंड द लास्ट, First and the last, हु वॉज डेड एंड केम टू लाइफ। who's dead and came to life. ये वचन कहता है कि स्मरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो And ये we read कहता in है। chapter, same way, Revelation chapter 1, verse 17 we read it. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 17 में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ये इसी तरह से कहता है, एंड व्हेन आई सॉ हिम When I saw him, आई फेल एट हिज फीट एज डेड, I fell at his feet as dead, बट ही लेड हिज राइट हैंड ऑन मी, laid his right hand on me, सेइंग टू मी, saying to me, डू नॉट बी अफ्रेड, do not be afraid. आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट, I am the first and the last. आई एम ही हु लिव्स I am he who lives and was dead, and was dead. and behold, I am alive forevermore. I am alive forevermore. देखिए यहाँ पर ये वचन कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ। ये कहता है मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ। My beloved, प्रिय लोगों, the picture of Jesus Christ, यीशु मसीह का ये जो चित्र है, we will read here. हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ते This हैं। is John. Once upon a time, he was leaning on the bosom of Jesus. एक समय यीशु का चेला यूहन्ना, जो यीशु की गोद में अपना सिर रखता था, Before him, उसके सामने the same Jesus यही यीशु, came and stood before him. वो आकर उसके सामने खड़े हो गए। We will read from chapter 1, हम इसे पढ़ेंगे अध्याय 1 verse 12 onwards. We'll वचन read. 12 से आगे पढ़ेंगे। You'll hear that. What are the things written there? यहाँ पर क्या लिखा है, आइए इसे पढ़ते हैं। Then I turned to see the voice that spoke to me, When I turned to see the voice that spoke to me, and having turned, I saw 7 golden lampstands. see, when I turned, I saw 7 golden lampstands. And in the midst of the 7 lampstands, In the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man, one like the Son of Man, clothed with a garment clothed with a garment down to the feet, down to the feet, and girded about the chest with a golden band. girded the chest with a golden band. His head and hair You see, listen. His head and hair were white like wool, like white like wool, as white as snow, as white as snow. and his eyes like a flame of fire. Eyes was like a flame of fire. His feet were like fine brass, Feet were fine brass, as if refined in the furnace, refined in a furnace. and his voice was sound like many waters. The voice was sound of many waters. He has in his right hand He had in his right hand 7 stars. 7 stars. Out of his mouth went a sharp, two-edged Out sword. of his mouth went two sharp, and the
went a sharp two-edged sword, sharp two-edged sword. and his countenance was like sun shining with his strength. His countenance was sun shining in strength. देखिए ये वचन कहता है, जब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 60 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे और उसकी आँखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। ये कहता है वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसे प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता हो, जैसा सूर्य तेज धूप के समय चमकता है। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, this is Jesus Christ appearing after the resurrection. He came to Patmos to meet John. ये तो यीशु मसीह प्रकट हो रहे हैं। पुनरुत्थान के बाद यूहन्ना से मिलने के लिए पतमोस टापू पर आते हैं। यीशु उससे मिलने के लिए आते हैं। See that his description. यहाँ पर इसका विवरण जरा देखिए। Hair उसके बाल was white as snow. वो तो ऊन के समान बिल्कुल श्वेत ऐसे बाल थे। वो ऊन के समान थे। White as snow. वो तो ऊन के जैसे बिल्कुल श्वेत थे। So white. इतने श्वेत थे। And he was wearing a robe. और वो वस्त्र पहने हुए था। It was down deep up to the feet. वो लंबा वस्त्र था, उसके पैरों तक था। He was wearing a golden band. और उसके छाती पर सोने का पटुका था। His face was shining like a sun when it is strong. और उसका चेहरा तो दिन दोपहरी में चमकने वाले सूरज के समान तेजस्वी था। The sun, उसका चेहरा तो महातेजस्वी था। how the sun shines. जैसे सूरज दोपहर में चमकता है वैसा उसका चेहरा चमक रहा था। That is how his face shined. उसी तरह से उसका चेहरा चमक रहा था। The eyes, from the eyes were burning fire. Fire, burning fire comes. और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसकी आंखों से अग्नि निकल It रही is थी। like a fire. ये बिल्कुल आग जैसे थी। And out of his mouth और उसके मुंह से proceeded sound like a double-edged sword. दो धारी तलवार के जैसी आवाज निकलती थी। उसके मुंह से ऐसी आवाज निकल रही थी। That's what the voice. ये तो उसकी आवाज थी। Voice of a mighty waters. और ये तो बहुत से जल की आवाज थी, जैसे बड़ा जल प्रवाह कहीं बह रहा हो। He was carrying stars on his right hand. वो अपने दाहिने हाथ में तारे लिए हुए था। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, the moment John saw this, जिस पल यूहन्ना ने ये सब देखा, he fell at the feet of Jesus. वो यीशु के चरणों पर गिर पड़ा। Fell at the feet of Jesus वो यीशु के चरणों पर गिर पड़ा as a dead man. एक मरे व्यक्ति के जैसे। Jesus यीशु ने laid his hand on him. अपना हाथ उस पर रखा He said, और उससे कहा, "Do not be afraid, John. यूहन्ना तू डर मत। Fear not, John. डर मत I यूहन्ना, am Alpha. मैं अल्फा हूँ, I am Omega. मैं ओमेगा हूँ। I was dead. मैं मर गया था I was alive और forevermore. अब मैं युगानुयुग के लिए जीवित हूँ। I have the key of death and hell." मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की चाबियां हैं, कुंजियां हैं। That means the key of death and hell in the hand of Jesus Christ. इसका मतलब मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां यीशु मसीह के हाथों में हैं। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, have you seen who Jesus is? क्या आपने देखा कि यीशु कौन है? Have you understood it? क्या आप इसे समझ गए हैं? Hello. सुनिए, What we think and what we say, what we hear in the world, हम संसार में जो कुछ भी सोचते हैं और जो कुछ देखते और सुनते they हैं, talk about Jesus. वो यीशु के बारे में कहते हैं। They don't know वो नहीं जानते what they speak.
कि वो क्या कह रहे whom हैं, they are talking, वो क्या कह रहे हैं, whom they are persecuting. वो किसे सता रहे हैं, इसके बारे में वो नहीं जानते They हैं, are not aware. वो सचेत नहीं हैं। Who is doing like this? ये ऐसा कौन कर रहा है? Beloved, प्रिय लोगों, this is a enemy. ये तो शत्रु है, Enemy ये शत्रु है, using you आपका उपयोग करता to है speak against this dignitary. कि सम्मानित लोगों के बारे में विरोध में बोलते जाएं, If you speak against the dignitary, this high कि powerful सबसे सामर्थ्य person, व्यक्ति के विरुद्ध में बोलते चले जाएं, उसके विरुद्ध में वो कहते चले जाएं, ये तो शत्रु है। from the eyes of him, उसकी आंखों से, it is from fire is coming out. उसकी आंखों से तो आग बाहर It is निकल like रही a है, fiery fire. उसमें से आग निकल रही है, उसकी आंखों से बस आग बरस रही है। When you persecute him, जब आप उसे सताते हैं, when you talk against him, जब आप उसके विरुद्ध में कहते हैं, turns and look at you, वो मुड़कर आपकी ओर देखते हैं, can you able to stand there? क्या आप वहां पर खड़े रह You will सकते be हैं? immediately consumed. तो आप तुरंत भस्म हो जाएंगे। But why you are not consumed? लेकिन आप क्यों भस्म नहीं हो रहे हैं? Because of his love towards you. क्योंकि उसने आपके लिए प्रेम रखा है, Because you do not know who is this Jesus Christ whom you are persecuting. क्योंकि आप नहीं जानते कि ये यीशु जिसे आप सता रहे हैं वो कौन You है। are ignorant. आप अनजान हैं, You do not know. आप नहीं जानते हैं, आपको पता You नहीं, are not आप understood. इसे नहीं समझे हैं, You are not allowed to know about him. आपको उसके बारे में जानने की अनुमति नहीं मिली है, But still he loves you. लेकिन फिर भी वो आपसे प्रेम You करता should है not perish. कि आप नाश ना हो। One word if he speaks, वो बस एक शब्द कह दे you are finished. तो आप खत्म हो But he will जाएंगे। not do that. वो ऐसा नहीं करेगा। This Jesus loves you so much. यीशु आपसे इतना प्रेम करते He's हैं, not ordinary. वो कोई साधारण बात नहीं। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, we must know हमें ये जानना who होगा is he. कि वो कौन है। He is Alpha and Omega. वही अल्फा और ओमेगा है, He is the beginning and the end. वही आदि और अंत है, He is the first and he is the last. वही पहला और वही अंतिम है। He is not ordinary. वो साधारण नहीं है। The Bible says, बाइबल कहती है this Jesus Christ ये यीशु मसीह is going to be your final judge. वो आपका अंतिम न्यायाधीश होगा। He is the person going to judge all the people of the world. वो ऐसा व्यक्ति होगा जो संसार के सभी लोगों का न्याय करेगा। God has commanded us, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है go into all the world. कि पूरे संसार में, जगत में जाओ Preach. और प्रचार करो। Bible say Acts chapter 10:42. प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 42 में बाइबल ये कहती है, आइए पढ़ते हैं। एंड ही कमांडेड अस टू प्रीच टू द पीपल एंड टेस्टिफाई दैट इट इज ही हु वाज ऑर्डेन्ड बाय गॉड टू बी जज ऑफ लिविंग एंड द डेड। टू हिम ऑल द प्रोफेट्स। What's this all? 10:42. देखिए यहाँ पर ये कहता है, उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God has commanded us, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है go and preach to all the people of the world. कि पूरे जगत के लोगों को जाकर प्रचार करें, Go and preach to all the people of the कि world. जगत के सारे लोगों को जाकर प्रचार करें This man, this Jesus Christ, कि ये मनुष्य, ये यीशु मसीह, God has ordained, He has ordained him as a judge of the living and the dead. परमेश्वर ने उसे मरे हुए और जीवितों पर न्यायाधीश नियुक्त किया है। Go and tell them, जाकर तुम उन्हें बताओ this person Jesus कि Christ, ये व्यक्ति यीशु मसीह, God appointed him, परमेश्वर ने इसे नियुक्त God किया है, ordained him, परमेश्वर ने इसे नियुक्त किया, God has made him परमेश्वर ने इसे बनाया as a judge of the living people and the dead people. कि ये जीवितों और मरे हुओं का न्यायाधीश ठहरे, ये उनका न्याय करे। That Jesus कि ये यीशु going to be the judge, वो तो न्यायाधीश होगा। died. जो लोग मर गए हैं, Dead people, जो मर चुके हैं, how they can judge? उनका न्याय कैसे किया जा सकता है? All the people, those who died and gone from this world, वो सभी लोग जो इस संसार में जी रहे थे और मर गए और चले गए हैं,
They all people are alive today. वो सब लोग आज भी जीवित They are हैं। all been stored in a place called Hades. वो तो हेड्स नाम की जगह पर वहाँ पर रखे गए हैं। They are all there वो सब वहाँ हैं, still today. आज भी हैं। Do you know that? क्या आप ये जानते They हैं? were crying there. वो वहाँ पर रो रहे हैं, They were praying वो there. वहाँ पर विनती कर रहे हैं, All of them are praying. वो सब विनती कर They रहे are all हैं, crying. वो सब रो रहे हैं। God, परमेश्वर, oh God, हे I परमेश्वर, have 5 brothers. मेरे 5 भाई हैं, I have my wife. मेरी पत्नी है, I have my children. मेरे बच्चे I हैं, have my brothers. मेरे भाई I हैं, have my sister. मेरी बहनें हैं, I have my parents. मेरे माता पिता I हैं, have my relatives. मेरे रिश्तेदार I हैं, have my friends. मेरे मित्र हैं। Let no one come to this place of torment. कोई भी सताव की इस जगह पर न आने पाए। Send somebody to home. किसी को मेरे घर में भेजिए प्रभु Send जी, somebody to home. मेरे घर में किसी को भेजिए, Tell them उन्हें बताइए, about this. इसके बारे में उन्हें What बताइए we are facing here. कि हम यहाँ किसका सामना कर रहे हैं। Believe this is the prayer going on. यही तो उनकी विनती चल रही है। People say everywhere we are praying. लोग ये कहते हैं कि हर जगह पर हम प्रार्थना कर रहे हैं, 24 hours prayer. 24 घंटे की Day प्रार्थना and night prayer. और दिन रात की प्रार्थना, High power prayer बड़ी सामर्थ के साथ की is प्रार्थना going on from this place of torment where the people those who died and gone. ये तो उस सताव की जगह से हो रही है जहाँ पर मरकर लोग चले गए हैं, वहाँ पर ये हो रही है। दिन रात ये प्रार्थना वहाँ पर हो रही है। That's what happening. यही तो हो रहा है। You may ask me how you can say so. शायद मुझसे पूछे कि आपने ये कैसे कहा। Luke chapter 16, you read it. लू का अध्याय 16 में आप इसे पढ़िए। You go and read the full chapter. आप पूरा अध्याय पढ़िए। There's a rich man died and gone there. यहाँ पर एक धनी व्यक्ति था जो मरकर यहाँ The चला rich गया man was praying there. और वहाँ पर धनी प्रार्थना कर रहा था, Oh Abraham, हे अब्राहम, I have 5 brothers. मेरे 5 भाई हैं, Send somebody home. मेरे घर में किसी को भेज। If anybody go home, अगर कोई मेरे घर में they जाए are kicking them out. तो वो उन्हें बाहर निकाल Why देते they हैं। go to home? वो क्यों घर में जाते हैं? It is answered prayer. ये प्रार्थना का उत्तर है। God sending the people to go and tell them. परमेश्वर ने लोगों को भेजा कि उन्हें बताएं। This Jesus Christ ये यीशु मसीह is appointed as a judge of the living and the dead. उसे जीवितों और मुर्दों का न्यायाधीश के रूप में ठहराया गया है। Go and preach the people. जाकर लोगों को ये प्रचार करो। One day, एक दिन this Jesus Christ, ये यीशु मसीह, whom the world crucified जिसे संसार ने क्रूस पे चढ़ाया and killed him on the cross, और उसे क्रूस पर मार दिया, this Jesus Christ, यही यीशु मसीह he will come as a judge. वो न्यायाधीश के रूप में आएंगे। Listen, my beloved. गौर से सुनिए प्रिय लोगों, When he come, जब वो आएंगे, the Bible says, बाइबल कहती है, Matthew chapter 25 verse 31. मत्ती अध्याय 25 वचन 31 में ये कहता है, Listen the word. आइए वचन सुनते हैं। When the Son of Man comes in his glory, When the Son of Man means Jesus come in his glory, and all the holy angels with him, all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. then he sit on the throne of his glory. All the nations will be gathered before him. All the nations shall be gathered before him. Listen, my beloved. यहाँ पर गौर से सुनिए, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके सामने आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी, यानी सारी जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, what is it? He come and sit on his throne. वो आकर अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे, Come and sit in his glory. अपनी महिमा में आकर विराजमान होंगे, He will come in his glory. वो अपनी महिमा में आएंगे, Come in his Father's glory. वो अपने पिता की महिमा में He आएंगे, will come on the throne of judgment seat. वो तो उस न्यायसन के सिंहासन पर विराजमान होंगे All the angels will come with him. और उसके साथ सारे स्वर्गदूत आएंगे। All the nations of the people, dead and alive, will gathered before him. और सभी जाति जाति के लोग, चाहे जो मर गए हो या जो जीवित हो,
उसके सामने इकट्ठे होंगे। वो सब उसके सामने जमा हो जाएंगे। Imagine the scene. इस चित्र की कल्पना कीजिए। I will be there. मैं वहां पर रहूंगा, You will be there. आप वहां पर रहेंगे, All our forefathers will be there. और हमारे सारे जो पूर्वज हैं वो भी वहां पर होंगे। All the people those who ruled the world and died and gone, they also will be there. जिन लोगों ने पृथ्वी पर राज्य किया था और वो मरकर चले गए, वो भी वहां पर होंगे। They all will come and gather there. वो सब वहां पर आकर जमा हो The जाएंगे। Bible says, बाइबल कहती है, Revelation chapter 20, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 verse 11. वचन 11। Bible says like this. बाइबल कहती है, Then I saw a great white throne I saw a great white throne. and him Him who sat on it, sat on it. from whose face the earth and heavens fled away. From his face the earth and heaven fled away. And there was found no place for them. They found no place for him. See that, brother? ये वचन कहता है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। इस तरह से ये वचन कहता है। Hello. सुनिए, Who sits on the throne? उस सिंहासन पर कौन विराजमान है? Jesus Christ. यीशु मसीह। He come and sat on the throne. वो आकर उस सिंहासन पर विराजमान होते हैं। When he sat on the throne, जब वो सिंहासन पर विराजमान होते हैं, my beloved, मेरे प्रिय the लोगों, earth ये पृथ्वी and the heaven और आकाश flood away. वो तो भाग गए, Flood away from his face. वो उसके सामने से भाग गए। Listen, सुनिए, they flood away. वो भाग गए There is no place for them. और उनके लिए कोई जगह न थी। Who is that person sitting there? वो व्यक्ति वहां पर कौन बैठा हुआ था? Jesus Christ. यीशु मसीह। Do you know it? क्या आप इसे जानते हैं? You will face him. आप उसके सामने खड़े I रहेंगे, will also face. मैं भी उसके सामने खड़े Whoever रहूंगा। I am. मैं चाहे जो भी हूँ। It is written in the Bible. ये देखिए, सब बाइबल में It लिखा will है, never change. ये कभी नहीं बदलेगा। It is appointed for a man to die once, then comes judgment. मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर न्याय का होना नियुक्त है, यानी उसका न्याय होना ही है। Then it says, फिर ये कहता है, he brings books, you open the books. किताबें लेकर आई जाती, उन्हें खोला जाता है। That means open the books. मतलब किताबें खोली You जाती हैं open one book called the book of life. और फिर जीवन की एक किताब खोली जाती है। He will judge the people whatever it is written on the book. और उस किताब में जो कुछ भी लिखा है उसके अनुसार लोगों का न्याय किया जाएगा। Verse 15 says, वचन 15 कहता है, Revelation 20 verse 15. प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 15 कहता है, And anyone found not written in the book of life was cast into the lake of fire. यहाँ पर ये कहता है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। That one book called the book of life. ये एक किताब जिसका नाम जीवन की पुस्तक है, That book is the book of Jesus Christ. और यही तो यीशु मसीह की पुस्तक है। All the people those who believe the Lord Jesus Christ and accepted the Lord Jesus Christ and received their name is written in the book of life. जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, ऐसे लोगों का नाम यीशु मसीह की इस जीवन की पुस्तक में लिखा होगा। If anyone, अगर कोई भी his name is not found written in the book of life, जिसका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, they will be thrown into the lake of fire. उन्हें आग की झील में फेंका जाएगा। I pray मेरी प्रार्थना है it should not happen to you. कि ये आपके साथ में ना हो, It should not happen to you. ये आपके साथ में It ना should not हो, happen to one single person in the world. इस संसार के एक भी मनुष्य के साथ ऐसा ना हो। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, come to Jesus. यीशु के पास आइए, Believe the Lord Jesus, प्रभु यीशु पर विश्वास who कीजिए, sacrificed for you on the cross of Calvary, जिसने कलवरी के क्रूस पर आपके लिए अपना बलिदान कर दिया gave his life and blood for you. और उसने अपना जीवन और अपना लहू आपके लिए दे दिया। He defeated death and came back to life. उसने मृत्यु को हराया और वो वापस जी उठा है। He is not ordinary. वो साधारण नहीं है, He is not ordinary. वो साधारण नहीं है। Have you seen क्या now? आपने इसे देखा है? Even the earth and heavens
fled from his face. यहाँ तक कि आकाश और पृथ्वी उसके सामने से भाग They गए found no place. और आकाश और पृथ्वी को कोई भी जगह न मिली, But still his arms are wide open. लेकिन फिर भी अभी भी उसकी बाहें खुली हैं। Come, my people. मेरे लोगों, मेरे पास आओ, Come to me. मेरे पास I आओ, give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Do you want this rest? क्या आपको ये विश्राम चाहिए? Do you want this life? क्या आपको ये जीवन चाहिए? Believe the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास whom कीजिए, God has given. जिसे परमेश्वर ने दिया है। You, those who believe him, जो उस पर विश्वास करते they हैं will have eternal life. वो अनंत जीवन पाएंगे They will never perish. और वो कभी नाश न होंगे। You will not perish. आप नाश नहीं होंगे। Only one call. बस एक बार पुकारना है। Whosoever call on the name of the Lord, जो कोई भी प्रभु यीशु के नाम को पुकारेगा they will be saved. वो उद्धार पाएगा, They will be saved. वो उद्धार पाएगा। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, it is God's desire. ये परमेश्वर की इच्छा है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Most gracious Heavenly Father, महाअनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, we want to thank you and praise you for every one of them, those who are listening this word. इस वचन को सुनने वाले हर एक दर्शक के लिए हम आपको धन्यवाद देते I हैं। ask you, Father, in the name of Jesus, पिता, मैं यीशु के नाम में ये मांगता हूँ all these dear children, कि ये सभी जो प्रिय संतान हैं, everyone, इनमें से हर एक व्यक्ति, please draw them into your bosom. इन्हें आप अपनी गोद में लेकर आइए। प्रभु जी, इन्हें लेकर आइए, स्वीकार कीजिए। Forgive their past, इनके भूतकाल को क्षमा कीजिए। all that they have done. इन्होंने जो कुछ भी किया है, Everything has been done ignorantly. सब कुछ प्रभु इन्होंने अनजाने में किया है। They did not know about you. ये आपके बारे में नहीं जानते थे। Now they heard of you. अभी इन्होंने आपके बारे में सुना। Now they have heard of your अब glory. इन्होंने आपकी महिमा के बारे में सुना। Now they have heard of your power. आपकी सामर्थ के बारे में सुना। Father, पिता, draw them to you. इन्हें अपने करीब लेकर आइए। Forgive all the past. इनके सारे भूतकाल को Let क्षमा कीजिए everyone embrace you. और सब आपको गले लगाने वाले बने। Everyone come to you. हर कोई आपके पास में आए। All those who are stopping them to come to you, और जो भी इन्हें आपके पास आने से रोकते हैं, all those who are distracting them, जो इनका ध्यान भटका रहे हैं, standing between them and you, आपके और उनके बीच में खड़े हैं, let everyone be burned off with a fire and destroy them. हर एक ऐसा काम प्रभु आग के द्वारा नाश कर दिया जाए, खत्म Let किया all जाए। be destroyed in the name of Jesus, ये काम प्रभु यीशु मसीह के नाम में नाश कर so दिए that they जाए, may freely come to you. ताकि ये बड़ी आजादी से आपके पास में आ सके Receive this eternal life. और इस अनंत जीवन को स्वीकार कर सके। Receive you, O हे Lord, प्रभु, आपको स्वीकार कर and सके escape the great judgment. और उस बड़े न्याय से बच जाए। Father, पिता, thank you for your love, आपके प्रेम के लिए for धन्यवाद। gathering all of them unto your bosom आपने इन सभी को अपनी गोद में जमा किया है and keeping them with you, Father. और इन्हें आप अपने साथ रखते हैं पिता। At the time of judgment, न्याय के समय they will not come into the judgment, इन लोगों का न्याय नहीं होगा, because those who are in Christ Jesus, क्योंकि जो मसीह no यीशु में condemnation हैं, for them. यानी जो यीशु मसीह में है, उन पर कोई दंड आज्ञा नहीं है Let all of them be saved. और ये सब बचाए जाएं। Help them to acknowledge you and accept you. मदद कीजिए कि ये आपको पहचाने और आपको स्वीकार करें। Wonderful Holy Spirit, अद्भुत पवित्र आत्मा, help these dear children. इन प्रिय संतानों की मदद कीजिए, Convict them. इन्हें कायल कीजिए Let them receive Jesus. और ये यीशु मसीह को स्वीकार Let करें them have the eternal life. और ये अनंत जीवन प्राप्त And करें let them live forever. और ये सदा सदा के लिए जीवित रहें In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Also, I pray मैं प्रार्थना that करता हूँ all of them be protected from all evil. कि हर एक व्यक्ति सारी बुराई से सुरक्षित रहें। आप इन्हें सुरक्षित रखिए प्रभु। Let everyone be protected from the evil works. हर कोई बुरे कामों से सुरक्षित रहें In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We give you glory. हम आपको महिमा देते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Beloved, believe on the Lord Jesus प्रिय Christ. लोगों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। He is something very special to us. वो हमारे लिए बहुत ही विशेष हैं।
In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन।